Hello friends and welcome to Noble Literature classes. In this video, we will study George Wilhelm Friedrich Hegel's study of the idea. Well, Hegel was a very great theorist and he has influenced especially the romantic writers of the British and also the Italian great Antonio Gramsci, who wrote his prison notebooks which talk about how a freedom or a revolution is born in a country. So we'll not talk about that right now. George Wilhelm Friedrich Hegel will actually complete what Schiller started, which we saw in the previous lecture. Now, if you remember, Immanuel Kant was the one who gave all the science and all the rules about how our mind perceives an object and how all the things go on. Like he talked about the understanding and all the reason, he compared all the stuff. And then Schiller came up with the idea of uniting both the subject and the object in order to reach a good unity of everything by giving us the example of the great ancients and all that. Now, Friedrich Hegel will say that we don't have to combine anything. In fact, we don't have to do anything. Or, in fact, idea has the own desire to come into this world. This is what Hegel says. Therefore, we'll be talking about this journey of idea, which Hegel said. And this idea will journey into three stages. There are three phases of his journey: symbolic phase, classical phase and the romantic phase. अब इन तीनों phases के बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं इनके वर्क की. Philosophy of Fine Arts, published in 1835. In this, he agrees with Hegel and disagrees with Kant. He says that true art is actually the unity of the subject and the object, and it completely meditates between form and content, between idea and the object. So Hegel believes that art is a storehouse to the wisdom of the ancient information. अब पुराने टाइम की नॉलेज इकट्ठा करना, उस टाइम की लाइफ को जीना अगर आप चाहते हैं तो आपको उस टाइम के वर्क्स को स्टडी करना पड़ेगा. आई मीन आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं बाय लुकिंग एट द वेपन्स डिस्कवर्ड इन द रूइंस ऑफ दोज टाइम्स, पर वो आइडिया it will be insufficient as compared to the idea which we will get by studying the work of those days or the art of those days. तो Hegel gives the example of Canterbury Tales. मतलब जिस तरह से जॉफ्री चौसर की कैंटरबरी टेल्स में इंग्लैंड दिखाया गया है, तो वो पिक्चर आपको कहीं मिल ही नहीं सकती उसकी. नो मैटर हाउ मैनी चर्चेज यू विजिट, नो मैटर हाउ मच people you talk to, but the actual life of that place is shown in the Canterbury Tales. Similarly, we can have an idea of our own past by looking at Mahabharata, Ramayana, or our proverbs. They give us an idea. Now, unlike Plato, Hegel's idea seeks a sensuous incarnation. अब यहाँ पे Hegel changes his course from Schiller. Schiller ने कहा था that we must look at the ancients and we must combine the subject and the object, or we must try to create that unity or that fusion or the play drive which he called. But Hegel says कि हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. In fact, the idea itself wants to be born in this world. And अब इसको इमेजिन करने के लिए you have to see कि the idea does not merely want to come in this world. In fact, it wants to be seen as a masterpiece. मतलब वो अपने आप को just exist नहीं करना चाहता, वो इतना कॉन्शियस है आइडिया कि ही वॉन्ट्स इट टू बी शोन एज ए मास्टरपीस. इसलिए वो अपने आप को ऐसे क्रिएटिव माइंड के अंदर ही, ऐसे क्रिएटिव आर्टिस्ट के अंदर ही स्थापित करेगा जो उसको वो फॉर्म दे सके. नाउ टू इमेजिन हेगल्स आइडिया is to imagine a liquid which has the desire and the power to make its own container or to create its own container. Now let us look at the three phases of the journey of the idea. हेगल कहते हैं कि आइडिया जो है इट ट्रेवल्स इन थ्री फेजेस. द फर्स्ट वन इज़ वेरी अनक्लियर. उसके अंदर तो आइडिया इज़ वेरी अनश्योर अबाउट इट सेल्फ. मतलब उसको अवेयरनेस तो है कि वो एग्जिस्ट करता है, बट ही डज़ नॉट रिजेंबल टू एनीथिंग. अभी उसको कोई आइडिया नहीं है कि वर्ल्ड जो हमारा वर्ल्ड है, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, उसके अंदर मैं अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस करूँ. तो इसके अंदर हीगल ने एग्जाम्पल्स दिए हैं अबाउट द एंशिएंट टेम्पल्स. जब मतलब एंशिएंट्स जो लोग थे, दे ओनली यूज टू कीप सम रॉक्स, और उन रॉक्स के पास बैठ के बस वो ध्यान लगाते थे, और दे जस्ट यूज टू थिंक नाउ वी आर वर्शिपिंग द गॉड.
सेकेंड फेज इज़ द क्लासिकल फेज। इसके अंदर आपको एक कंसेप्ट समझना होगा, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। मतलब ह्यूमंस की एक ऐसी टेंडेंसी है कि हम हर चीज़ को उसी से रिलेट करेंगे विच वी नो अबाउट। वी आर रिलेटिंग एवरीथिंग टू द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। अब हम गॉड को भी अगर बनाएंगे तो हम ऐसा बनाएंगे कि या तो वो सूर्य देव हैं, या फिर वो वायु देव हैं, या फिर वो किसी जानवर का रूप लेते हैं, या फिर वो अगर इंसानों जैसे भी दिखते हैं तो वो किस तरह से दिखते हैं। तो this anthropomorphism of us, it is the second phase of ideas journey according to Hegel. वो कहते हैं कि in this phase idea has established an embodiment in the nature। मतलब कि हम नहीं हैं जो उसको वो फॉर्म दे रहे हैं, इट इज़ एक्चुअली द आइडिया इट सेल्फ विच हैज़ एंटर्ड आवर माइंड एंड विच इज़ इनेबलिंग अस टू लिंक इट सेल्फ विद द नेचर। तो इसके अंदर एग्जांपल्स लें तो देयर वर कार्विंग्स, दे आर गॉड्स। हमारे भी मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गई थी 2000 साल पहले, तो वो फेज़ हम रिलेट कर सकते हैं। हेगल ने भी वैसा ही टाइम रिलेट किया है। एंड द थर्ड फेज इज़ जिसके अंदर फाइनली आइडिया को पता चलता है कि एंड इट कम्प्लीटली रिवील्स इट सेल्फ, इट ब्रेक्स द रिजिड फॉर्म्स और द रिजिड क्लासिकल फॉर्म्स विच आर गिवन in the world of forms, and it completely gives a shape to itself. It has become totally self-conscious and capable. अब एग्जाम्पल ले सकते हैं द सतयुगा। ऑल्दो हेगल गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ द न्यू जेरूसलेम, बट वी कैन relate it with the Satyuga, where the unity of the spiritual and the physical completes. हमारे भी सतयुग के अंदर वी आर completely spiritual and completely physical at the same time. तो हीगल ने न्यू जेरूसलेम का एग्जांपल दिया है, उसके अंदर मतलब जीसस, अब चलो समझा देता हूँ। जीसस का क्या था कि फर्स्ट देयर वाज एन आइडिया ऑफ गॉड बट नोबडी न्यू व्हाट इट वाज। सेकंड फेज में गॉड अवतरित होते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीसस। थर्ड फेज में everybody has learned the teachings of Jesus and he is ready to form the city of New Jerusalem where the spiritual and the physical will combine. तो अब बात करते हैं कि इन्होंने क्या फॉर्म्स बताई इनकी जिसके अंदर आइडिया अपने आप को शो करता है। तो देर आर थ्री थिंग्स, पेंटिंग, म्यूज़िक एंड पोइट्री। अब हेगल के अकॉर्डिंग पेंटिंग्स आर द लीस्ट आइडियल फॉर आर्ट टू शो इटसेल्फ, क्योंकि पेंटिंग के अंदर हम कुछ गिने चुने कलर्स या कुछ उसके थ्रू ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर द सेकंड प्रायोरिटी वाज गिवन टू म्यूज़िक, लेकिन म्यूज़िक के अंदर भी 7 ही सुर हैं, तो उसके अंदर भी इतना ज़्यादा फ्रीली हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते आइडिया को अकॉर्डिंग टू हेगल। और तीसरा वाज द पोइट्री। तो पोइट्री के अंदर हेगल ने कहा कि पोइट्री इज़ द फ्रीएस्ट एंड मोस्ट आइडियल वे टू एक्सप्रेस आर्ट, और उन्होंने उसको टर्म किया दैट पोइट्री इज़ द यूनिवर्सल आर्ट ऑफ द माइंड। अब काफ़ी सारे रोमांटिक एस्थेटिशियंस हैं जो कि इस चीज़ से डिसअग्री भी करेंगे बाद में। कुछ लोग करेंगे कि पेंटिंग ज़्यादा पावरफुल है या म्यूज़िक ज़्यादा पावरफुल है, पर हमें उस डिबेट में नहीं जाना। वी आर डिस्कसिंग अबाउट हेगल्स आइडिया। तो अब आइडिया के बारे में एक जर्नी बता के या उसके ऊपर इतना डीपली रिसर्च करके हेगल हैज़ इन्वेंटेड अ डायलेक्टिक। Dialectic means an inquiry into the metaphysical or that world which is beyond the physical. In this, he comes to the conclusion कि idea creates its own opposite after some time. मतलब एक थीसिस हमारे माइंड में जो फॉर्म होती है तो थोड़े से टाइम के बाद उसकी अपने आप एक एंटी थीसिस फॉर्म हो जाती है, एंड देन दे टू स्टार्ट क्लैशिंग विद ईच अदर, और फाइनली दे बोथ विल कोलाइड बट दे विल फ्यूज ऑल्सो, and in that fusion the synthesis or the final product will be created which is the higher form than both of those. अब कार्ल मार्क्स ने ये आइडिया लिया फ्रॉम हेगल ऑफ द डायलेक्टिक और उसने उसको कन्वर्ट कर लिया टोटली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। मतलब वो जो स्पिरिचुअल एंगल था हेगल का उसको उन्होंने टोटली कट ऑफ कर दिया। उसने कहा कि ठीक है आइडिया की जर्नी है, बट वो जर्नी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से नहीं है या वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स से नहीं है। वो आइडिया आता है सबसे ऊपर के लोगों से, जो सबसे रिच क्लास है, जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। वो लोग एक आइडिया डिस्कवर करते हैं और उस आइडिया को फिर वो धीरे धीरे नीचे हमारे वर्ल्ड में भेजते हैं, विच इज़ आवर ओन द वर्कर क्लास। और हम लोगों को फिर वो हमारे कल्चर्स बनाते हैं या हमारे रिलीजन्स बनाते हैं या हमारे लिए रूल्स रेगुलेशन, हमारा संविधान, जो भी आप कह लो,
तो ही सेज कि एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है ऊपर, जो हम जैसे ही लोग हैं, इंसान ही बैठे हैं, और वही लोग दे आर क्रिएटिंग दैट प्योर आइडिया और उसको वो नीचे ट्रांसफ़र कर रहे हैं. तो मार्क्स के डायलेक्टिक को डायलेक्टिक मटीरियलिज्म कहेंगे, एंड वी शुड नॉट कन्फ्यूज इट विद हीगल्स डायलेक्टिक, बिकॉज हीगल्स डायलेक्टिक वॉज स्पिरिचुअल एंड मार्क्स डायलेक्टिक वॉज फिजिकल. तो ठीक है गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट हीगल्स आइडिया. अगर समझ आया तो गिव अ लाइक टू दिस वीडियो, नहीं समझ आया तो प्लीज़ ट्राई टू वॉच इट अगेन एंड मे बी यू विल गेट अ बेटर पिक्चर. अगर फिर भी नहीं आया तो प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट. तो प्लीज़ शेयर दिस. So share this channel with your friends and thank you. Have a very nice day.